اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک امت پہ میں سید ارمان چشتی بذریعے اس چینل کے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ظلم و ستم کے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اتنی ایذا رسانیوں اور تکلیفوں کو سہنے کے باوجود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ کا فرض انجام دیتے رہے۔ اس پر کفار مکہ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور سوچنے لگے آخر کار اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد اپنی تبلیغ کیوں نہیں بند کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ تمام سردار قریش حرم کعبہ میں بیٹھے سوچنے لگے ممکن ہے محمد عزت و جہاں یا سرداری و دولت کے خواہش مند ہوں۔ چنانچہ سبھی نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے راضی کیا اور اس سے کہا کہ محمد کے پاس جا کر ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ آپ سے تنہائی میں ملا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، عزت و دولت کے خواہش مند ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہے کھلے دل کے ساتھ عرض کریے اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں اگر آپ تبلیغ اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی تمام خواہشیں و تمنائیں پوری کر دی جائیں گی۔ عتبہ کی اس تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیت تلاوت فرمائی۔ ان آیت کو سن کر عتبہ کا جسم خوف رب ذوالجلال سے لرزنے لگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا اے محمد بس کریں، آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ، میرا دل اس کلام کی عظمت سے لرز رہا ہے۔ اور اس کے بعد عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا۔ عتبہ ایک بڑا ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ جب وہ سردار قریش کے پاس واپس لوٹا تو کہنے لگا محمد جو کلام کرتے ہیں وہ تو نہ جادو ہے، نہ کہانت اور نہ کوئی شاعری، وہ بلکہ کوئی اور چیز ہے، لہٰذا میری رائے ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اگر وہ کامیاب ہو کر تمام عرب پر غالب ہوتے ہیں تو اس سے قریش کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے ان سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ و مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ قریش میں کچھ صلح پسند تھے، وہ یہ چاہتے تھے بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے کچھ معزز جناب ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور شرک و بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ جناب ابو طالب نے انہیں نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر بھیج دیا، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فصدع بما تؤمروا کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت کرتے رہے اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔
चुनाचे तमाम सरदार कुरैश यानी उतबा व शैबा व अबू सुफियान व आज़ बिन हशाम व अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा सब एक हमरा होकर जनाब अबू तालिब के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप हमारे दरमियान से हट जाएं और उसको हमारे सुपुर्द कर दें, या फिर आप भी उनके साथ खुले मैदान में आ जाएं ताकि दोनों में से एक का फैसला हो जाए। जनाब अबू तालिब ने इनके तेवर देखकर समझ लिया कि अब बहुत नाजुक घड़ी सर पर आ चुकी है और कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इंतहाई मुखलिसाना लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, ये कुरैश तुम्हारे को नुकसान पहुँचाने पर आमादा हो गए हैं, लिहाजा अपने बूढ़े चचा की बात मानो, अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए इनके सामने ना जाओ। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मोइनी व मददगार जनाब अबू तालिब ही थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की ये बात सुनी तो कहने लगे, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी दे दें तो मैं इस दावत हक़ को नहीं रोकूंगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद ही दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर जनाब अबू तालिब का दिल पसीज गया और वो इस कदर मुतासिर हुए और उनका हाशमी लहू भतीजे की मोहब्बत में इस तरह गर्म होकर खौलने लगा कि इंतहाई जोश के साथ उन्होंने कह दिया, ऐ जाने ऐ अम्मू की जान, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। इस गुफ्तगू के बाद जनाब अबू तालिब बनु हाशिम के पास हाजिर हुए और उन्हें पूरी बात से बेखबर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा लिया। दूसरे दिन जनाब अबू तालिब हरम में बनु हाशिम के जवानों के साथ हाजिर हुए और तमाम सरदार कुरैश से कहने लगे, क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ और इन्हें अपने साथ क्यों लाया हूँ? फिर आपने अपने जवानों से कहा, इन्हें दिखाओ। सबके हाथ में चमकती हुई तलवारें थीं। फिर आपने कहा, क्या तुम मेरे भतीजे को कत्ल करना चाहते हो? अगर ऐसा किया तो न तुम्हारे में से और न हमारे में से कोई बचेगा। ये सुनकर सब वहाँ से भागे, जिसमें अबू जहल सबसे आगे था। ये हिजरत 5 नबवी रजब के मुताबिक 615 ईस्वी में पेश आई। कुफार मक्का ने जब अपने जुल्म व सितम मुसलमानों पर अरसे हयात तंग कर दिए तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील करते हुए 11 मर्द और 4 औरतों ने रात के वक्त खामोशी से हबशा की जानिब हिजरत की, जिनके नाम ये हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया बिनते मोहम्मद, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा अपनी ज़ौजा हज़रत सहला बिनते सुहैल, हज़रत अबू सलमा अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा के साथ, हज़रत आमिर बिन रबिया अपनी ज़ौजा लैला बिनते हशमा के साथ, हज़रत ज़ुबैर बिनुल अवाम, हज़रत मुसब बिन उमैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत उस्मान बिन मज़ाउन, हज़रत अबू साबिर, हज़रत सुहैल बिन बैज़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद। कुफ़ार मक्का को जब इन लोगों की हिजरत के बारे में मालूम हुआ, इन जालिमों ने कुछ लोगों को इनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मुसलमान कश्ती पर सवार होकर निकल चुके थे और वो कुफ़ार नाकाम वापस लौटे। मुहाजिरीन का ये काफ़िला सरज़मीन हबशा के अंदर दाखिल होने के बाद अमन व अमान के साथ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। चंद दिनों बाद हबशा में ये अफ़वाह फैली कि कुफ़ार मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये ख़बर सुनकर चंद लोग लौट आए। जब यहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ ये ख़बर तो झूठी थी। चुनाचे कुछ लोग वापस हबशा को चले गए और कुछ लोग मक्का में रुपोश होकर रहने लगे, लेकिन कुफ़ार मक्का ने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म व सितम ढाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को फिर हबशा चले जाने का हुक्म दिया। इस बार हिजरत करने वालों की कुल तादाद 83 मर्द और 11 कुरैशी व 7 गैर कुरैशी औरतें भी शामिल थीं।
इस दूसरी हिजरत में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी अज़वाज अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह अन्हो भी थीं। इनमें मिक़दाद बिन असूद रज़ी अल्लाह अन्हो, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो, अब्दुल्लाह बिन जैश और उसकी बीवी उम्मे हबीब रज़ी अल्लाह अन्हो थी। ये अब्दुल्लाह बिन जैश हबशा में जाकर दीन इस्लाम से फिर गया और इसने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया। इसी हालत में उसकी मौत हुई और इसकी बीवी उम्मे हबीब रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम पर कायम रही और बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उन्होंने इनके पीछे अम्र बिन आस और उमरा बिन वलीद को भेजा ताकि ये वहाँ जाकर हबशा के बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ़ भड़काएं। ये दोनों हबशा के बादशाह नज्जाशी के लिए तोहफ़े लेकर गए। बादशाह को तोहफ़े पेश किए जिसमें कीमती घोड़े व रेशमी कपड़े थे। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफ़े दिए ताकि वो सब इनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने सजदा किया और बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे ख़ानदान के कुछ लोग आपकी सरज़मीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। इन्होंने आपका दीन भी नहीं इख्तियार किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको ना आप जानते हैं और ना हम। अब हमें कुरैश के सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नज्जाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही के यहाँ हैं। नज्जाशी ने उनको बुलाने के लिए फ़ौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप उन लोगों को इन दोनों के हवाले कर दे, इसलिए कि ये उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। नज्जाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा, पहले मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से कहा, नज्जाशी से मैं बात करूँगा। इधर नज्जाशी ने तमाम ईसाई आलिमों को तलब कर लिया ताकि वो मुसलमानों की बात सुन सकें और वो अपनी किताबें भी उठा लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में दाखिल होने के वक्त इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया, बादशाह को सजदा नहीं किया। इस पर नज्जाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा नहीं किया? हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, हम सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजा है और हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी ने सजदा ना करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया जो जन्नत वालों का सलाम है। नज्जाशी इस बात को जानता था इसलिए कि वो बात इंजील में थी। इसके बाद हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस वक्त अम्र बिन आस ने नज्जाशी को भड़काने के लिए कहा, ये लोग इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये लोग उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नज्जाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी वो रूहुल्लाह हैं और कुंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हज़रत जाफ़र इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बादशाह के दरबार में तकरीर करी, ए बादशाह, हम गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते थे, बेअदबी करते थे और पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। हमारे यहाँ ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये हमारे हालात थे। फिर अल्लाह ने हम में से इसी तरह एक रसूल भेजा जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे हैं। ये रसूल हम ही में से हैं। हम इनके हसब, नसब और सच्चाई व पाक दामनी को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जाने और उसी की इबादत करें, अल्लाह के सिवा पत्थर और बुतों की इबादत छोड़ दें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें और रोज़े रखें। उन्होंने हमें सच बोलना, अमानत पूरी करना और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, बुराइयों से बचना और बदकारियों से दूर रहने का हुक्म दिया और यतीमों का माल खाने और घर में बैठी औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया।
ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر سے پتھروں کی عبادت پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، لیکن جب ان کے ظلم و حد سے زیادہ بڑھ گئے اور ہماری دین کے راستے میں یہ رکاوٹ بن گئے تو ہم نے آپ کی سرزمین کی طرف رخ کیا۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہاں امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کے کچھ حصے موجود ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں موجود ہیں۔ نجاشی نے کہا، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ آیتیں سن کر نجاشی اور اس کے پادری کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیتیں سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیتیں بھی سنائی۔ پھر نجاشی بولا، اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح قریشی وفد واپس ناکام لوٹے۔ اس کے ساتھ میں میرے اس موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔